The today's workshop topic is quite interesting. That is Internet of the Things, which itself is one of the famous buzzword nowadays besides AI and machine learning. So, in this Internet of the Things, we are going through the several stages, and now we are in the Internet of the Things 5.0 version. But initially, it is quite necessary how we are going to pass through 2.0, 3.0, and 4.0 version. So you will also explore all the details through these 2 days workshop. So hope you will get all the things about IoT. Thank you so much to all the organizing team and blessing to all the students. So, first of all, I would like to welcome delegates who are coming far away to interact with you, and they are trying to let you know that what the technologies are going on. Because of somewhere we have heard about this कि robotics ये होता है, robotics ये होता है, artificial intelligence आ गया, manpower को replace कर देगा. So many questions are going on. My name is Yashwant and I'm coming here for the IoT and robotics internship and the workshop. So before we starting the session, we just want to tell you about a little bit about the company, what we are doing and what we are offering to the student. Then we will be started to guide you the rest of the part about the robots and we help you to teach about the robots also. So let's be started. Please change the slides. For the mean of Gen Z, here we are just improve the knowledge of Generation Z students about in this youth, help you to guide about the robotics, IoT and AI systems. And here we are the most important, we are not a teacher, we are the already working professional in the different companies. Here the Pratmesh is also there, he was a content creator and as well as he was a research and development engineer. I am here, I am research and development engineer and working on the different type of robots for the industrial purpose like Adani projects I made and the different type of project we made it. Here we just guide you how which practical substances is uses for the robotics and how can we it able to work on the different parameters. The robots work in the different parameters because the theory knowledge is completely different. But when the robots is started to work on the particular industries, they can be feel the different type of pressure, vacuum, the air, and the age and every parameter is important for all the things. So here we are totally guide you about that. So starting for the Gen Z, please change the slide. This is the Gen Z company where we just give you the knowledge about the IoT and the robotics for the all kind of the student. Here you can be able to learn the different type of things like robotics, like drone, and the lots of things which is will be help you to improve your daily life and the rest of the thing. Here the you can be go our website also and you can be see where we provide the courses as well as the component which is related for this stuff. So which can be help you the completely and guide you how to make a robot completely. So thank you for each and everyone for the see the Gen Z and might be you will be go and follow and check the entire website also and learn lots of the things from the Gen Z also. तो हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं, what we are going to show you is the journey from making a project to building a product. We'll also show you how to make this project. ठीक है? It not necessarily means कि ये project किसी domain में fall करेगा, और but ये सारे domains को cover करेगा, which includes mechanical design, electronics, coding. ठीक है क्या? We'll also show you how you can start your own entrepreneurial journey with this specific product. बस भी नहीं सर, ये तो पता ही नहीं है, हमारे डोमेन का ही नहीं। किसी ने देखा है क्या? पहले तो मुझे बताओ, तुम लोग में से फर्स्ट ईयर के कौन कितने लोग हैं यहाँ पे? सारे फर्स्ट ईयर है। ऑसम, बहुत बढ़िया, एनर्जेटिक है। और बाकी डिपार्टमेंट्स कौन से? मोस्टली आईटी है क्या? अच्छा, ग्रेट ग्रेट, ब्रिलियंट। ठीक है, तो किसी ने ये देखा है क्या कहीं पे? क्लोजली भी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ये रोबोट है, ठीक है, और इसको हम लोग मूव करेंगे। ठीक है क्या? अभी आगे मुड़ रहा है।
ठीक है क्या, ये थोड़ा मैं इसको सुसाइडल रोबोट बोलता हूँ कभी कभी, क्योंकि इसको पता नहीं गिर जाता है जब तक मैं इसके सामने ऐसे हाथ नहीं रखूंगा, फिर ये पीछे मुड़ता है और फिर ये आगे जाता है। दिस कैन ऑल्सो मूव साइडवेज डिपेंडिंग अपॉन द कोडिंग। तो ये मेरा हार्ट डिटेक्ट कर रहा है बिकॉज इसमें एक डिस्टेंस सेंसर लगा हुआ है, ठीक है क्या, और इसमें मोटर्स लगी हुई है, ये मोटर्स के थ्रू ये आगे या पीछे जा रहे हैं। किसी को नहीं दिखाई दिया क्या? किसी को देखना है क्या रोबोट पहले तो? ठीक है, ये उसको प्रोसेस करता है, उसके अंदर कोड डाला हुआ है हमने, उस चीज के थ्रू प्रोसेस करता है और फिर एक आउटपुट देता है, ठीक है क्या। वो आउटपुट क्या देता है? दो फॉर्म्स में देता है। अगर डिस्टेंस डिटेक्ट हुआ तो क्या करेगा? ये बजर बजाएगा, आवाज आ रही थी ना इसमें, पी पी। और दूसरा मूवमेंट है सर्वो का, यानी सर्वो क्या करता है? मूव करता है, आगे जाता है रोबोट, पीछे जाता है। तो ये मोटर्स है जिनको हम बोलते हैं सर्वो मोटर्स। क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली। अभी हम इन जो भी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। बहुत इजी है इससे कोई भी प्रोडक्ट बनाना, बहुत इजी। इट्स वेरी बिगिनर फ्रेंडली। सेकेंडली बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है क्या, बहुत बड़ी कम्युनिटी और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर, ठीक है क्या, जिससे आप कोड लिख सकते हो, इसके अंदर अपलोड कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे कूल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं इससे, बहुत बढ़िया बढ़िया हम बनाएंगे, हम देखेंगे अब कैसे क्या। तो अलग अलग आर्डिनो के टाइप्स होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो टाइप है आर्डिनो ऊनो है, ओके। तो ये सबसे पॉपुलर बोर्ड है, थोड़ा बड़ा होता है साइज में। एटमिक 328 की उसके अंदर का जो बीच की चिप है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सेकंड बड़ा होता है वो है आर्डिनो नैनो। इस साइज में थोड़ा छोटा है लेकिन काम वही करता है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर इसका थोड़ा छोटा है और कुछ नहीं। और है आर्डिनो मेगा। ये बोर्ड साइज में बड़ा है, इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पिन्स बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे आपको ज़्यादा सेंसर्स लगाने, ज़्यादा डिवाइसेस लगाने, एटमिक जो अपना आर्डिनो मेगा है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ना, इसमें बहुत सारे पिन्स हैं, देख रहे हो क्या, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं वो इतना पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये जो सारी पिन्स हैं ये डिजिटल पिन्स हैं। आपने डिजिटल और एनालॉग पढ़ा है किसी को पता है क्या होता है? वो जो बताएगा डिजिटल एनालॉग में डिफरेंस क्या होता है उसको एक टॉपिक बताऊंगा कैसे, बट सिर्फ 0 से 180 के बीच का ही मूवमेंट ये कर सकता है। सिमिलर आउटपुट डिवाइस है एक बजर, ठीक है क्या। बजर क्या करता है? जब मैं इसको एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देता हूँ ये बीप करता है, बहुत सिंपल है। अब मैंने बताया था हर डिवाइस को सिर्फ 2 पिन्स होते हैं पावर की, कौन सी? वोल्टेज एंड ग्राउंड। What we need to do is to give them a resistor. रेजिस्टर का काम क्या होता है? To stop the amount of current जो उस स्पेसिफिक एलईडी को जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ D2 पिन पे। मैंने रैंडमली चुना, आप कुछ भी पिन चुन सकते हो, आपको D7 चुनना है D7 चुनना, ठीक है। यहाँ पे ओम्स वैल्यू डाल देता हूँ 330 ओम, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 330 ओम, ठीक है, ओके। अब इस माइक्रो कंट्रोलर को मैं प्रोग्राम कर देता हूँ। मैं एक आसानी से लाइफ को बहुत सिंपल कर देता है। यहाँ पर हम एग्जांपल में हम बात करेंगे कि जैसे कि आपको पहले माइक्रोवेव ओवन नहीं होता था तो अपन कैसे गर्म करते थे, आज माइक्रोवेव ओवन आप सबके पास आ गया है, धीरे धीरे ये चीज़ें हो गई है। तो ये सब कुछ चीज़ें पार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम को बोला जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर दो चीज आती है, व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर। इतना तुमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, प्रथमेश ने क्लास ले ली है तुम्हारी, तो थोड़ा तो बता पाओगे कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। कोई भी बच्चा डेफिनेटली उसे चॉकलेट मिलेगी। चॉकलेट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू दैट। आप थोड़ा खुद इनोवेटिव हो, खुद से कुछ जवाब दो। यहाँ पे देखो सबकी लाइफ सिमिलर है भाई, कोई टाइम पे हम भी बैक बेंचर थे, हम भी सीखते थे। तो इनोवेशन में कोई प्रेफरेंस नहीं होता कि आप आगे हो कि पीछे हो, ये होता है एग्जीक्यूशन। सारा खेल एग्जीक्यूशन का, फेल हुए वापस एग्जीक्यूट करा, फेल हुआ R&D में आप बैठोगे 10 बार फेल हो गए एक प्रोटोटाइप को बनाने के लिए, लेकिन लास्ट में क्या होगा, तुम्हारे पास एक फाइनल प्योर रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी अपना दे सकता है, कोई भी आइडिया दे सकता है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का, बहुत अच्छा होगा। कोई भी थोड़ा सा इनोवेटिव बच्चा हो अपने, थोड़ा सा भी वही, क्योंकि इतनी बढ़िया कॉलेज है, इतना क्रिएटिव बच्चे हैं। चलो ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रो कंट्रोलर होता है जो आपने आर्डिनो अभी हाथ में देखा, वो सब माइक्रो कंट्रोलर होता है। वो माइक्रो कंट्रोलर एक समय में एक टास्क परफॉर्म कर सकता है, मतलब उसके अंदर एक बार तुमने कोड डाल दिया, वो एक समय में एक ही काम करके उसको टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अंडरस्टैंड। दूसरी चीज, इसमें एक एग्जांपल हो गया आर्डिनो एटमेगा 328। वो पूरा जो बोर्ड था ना, उसमें सबसे मेन चीज पता क्या थी, उस बोर्ड की थी आईसी। किसी ने पूछा नहीं, उसका नाम था एटमेगा 328 थी। वो आईसी क्या करती है, उस बाकी डेवलपमेंट बोर्ड को कंट्रोल करने का काम करती है, उसको सिग्नल्स प्रोवाइड करने का काम करती है। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, उसके अंदर लो पावर कंजप्शन करता है वो, उसमें रैम होता है, रोम होता है, और उसका आर्किटेक्चर पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। अब आएगा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये सबसे धांसू चीज़ है मेरे दोस्तों। तुम बोलोगे ये क्या चीज़ है सर, मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या है। कि माइक्रो प्रोसेसर होता है स्मॉल कंप्यूटर, ये जो तुम सब यूज कर रहे हो सब कंप्यूटर्स हैं, लेकिन इतना छोटा कंप्यूटर के बारे में बात करूंगा मैं। चलो ये देखो, ये वन ऑफ द एग्जांपल है, इसको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, वर्ल्ड का सबसे छोटा मिनी कंप्यूटर। अभी आप बात करोगे, इसका नाम है रास्पबेरी पाई। तो बच्चों को एक बार देखने के लिए, ये थोड़ा कॉस्टली भी आता है, थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना। कोई तो बच्चा होगा, आप थोड़ा कर रहे हो। हाँ हाँ, प्रोग्रामिंग के लिए व्हाट द मीन ऑफ द लाइब्रेरी, आई जस्ट वांट टू आस्क। ओके, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं इसमें। जैसे कि आप बात करते हैं कि रास्पबेरी पाई GPIO SR, इसके अंदर पहले से ही लाइब्रेरी के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर की जो भी लाइब्रेरीज है, जो भी फंक्शन क्या चीज़ परफॉर्म करेगा, वो सब चीज़ें इंपोर्ट RPI में स्टोर कर रखी है। इसमें हम बोलेंगे GPIO SR मीन्स GPIO से रिलेटेड जितने भी कनेक्शन है वो एक्टिवेट हो जाए, और उसके अंदर जितने भी डाटा है वो सब कुछ है। अब यहाँ पर SR उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, SR मीन्स अब से इसका नाम R है, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने। एक लाइब्रेरी को बोल दिया तेरा नाम R से R है, जो मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर स्टोर है, R से तेरा नाम R है, ठीक है। इंपोर्ट टाइम, ऐसे ही इंपोर्ट कर लिया मैंने टाइम का भी एक लाइब्रेरी, जिसमें हम मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं टाइम से रिलेटेड, बट अभी उसके अंदर से सिर्फ टाइम करेंगे, और जिससे हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं कि कोई डिले डालना है, कितने सेकंड का डिले डालना है, कोई भी प्रोग्राम में सेंसर को आउटपुट में कितना डिले डालना है, समय के साथ में कैसे रेस्पॉन्स करना है, तो वो सबके लिए ये लाइब्रेरी होती है। ऊपर वाली दोनों चीज़ें लाइब्रेरी हो गई है। नीचे आप बात करेंगे r.setmod.r.capital BORD बोर्ड। यहाँ पर क्या है, इसमें इसको मोड होते हैं, दो प्रकार के मोड होते हैं, एक तो होता है BCM, एक होता है कैपिटल बोर्ड। ये जो बोर्ड होता है ना कैपिटल में लिखा हुआ, ये सीधा एक्सेस दे देता है। जैसे कि थर्ड पिन के साथ में हमने डायरेक्ट कनेक्ट करा रास्पबेरी पाई को डायरेक्टली, नॉट बी नीडेड टू एक्सप्लेन कि GPIO 3 है, GPIO 5 है, GPIO 10 है। यहाँ पे सिर्फ अगर आपने इसको एक्सेस कर लिया तो आपको सिर्फ ओनली 3 लिखना पड़ेगा। एक तरह का इसका मोड है जिसको आपने एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद में आएगा r.setup, इसको आपने सेटअप करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे r.setup मैं क्या सेट करना चाहूँ, मतलब उस लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग, R मीन्स लाइब्रेरी, उसमें मेरे को सेटअप करना है। क्या सेटअप करना है? थर्ड GPIO 3, जो पिन नंबर GPIO 3 यहाँ पे दिख रही होगी, ये GPIO पिन है, ये GPIO पिन का पूरा टेबल है। ये जरूर याद कर लेना, इन फ्यूचर तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा अगर रास्पबेरी पाई पे तुम काम करोगे तो।
तो इसके अंदर जो थर्ड वाली पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है GPIO 3, तो GPIO 3 के ऊपर हमें क्या करना है, हम सीधा बोलेंगे GPIO 3 है .out.output, मुझे वहाँ से आउटपुट निकालना है। मैंने दो चीज़ आपको बताई थी, सेंसर बाहर से इनपुट लेता है और आउटपुट के अंदर हमें कोई भी चीज़ परफॉर्म कराते हैं। भाई मोटर को चलाना है, बाहर से कोई भी सेंसर हमने डाटा लिया कि कुछ भी हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अंदर सेंसर को बोल रहे हैं मोटर चल जाए, AC चल जाए, फलाना चल जाए, तो उसको R.output के थ्रू अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो R.setup इज इक्वल टू 3, R.output है। यहाँ वाइल लूप का यूज किया जा रहा है। कोई भी बता सकता है वाइल लूप क्या होता है? कोई भी कोडिंग का थोड़ा भी एंथुसियाज्म नहीं है? ठीक है, वाइल लूप का मतलब होता है इनफिनिट लूप, वो चीज जो इसके नीचे लिखी जाएगी वो बार बार एग्जीक्यूट होगी, बार बार, जब तक उसको हम प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं कर दे या कंट्रोल X के थ्रू काट ना दे, वो चीज बार बार होगी। क्योंकि अभी सपोज करो एक बार डेटा लिया सेंसर ने, आपको दे दिया और उस टास्क को परफॉर्म करवा दिया, सेंसर ने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसको बार बार रीइंस्ट्रक्ट करना कि तू बार बार लगातार डेटा लेता रहे बाहर से और मुझे उसके अकॉर्डिंग ही तुरंत ही रेस्पॉन्स चाहिए, तो उसके लिए अपन को वाइल लूप लगाना पड़ेगा। इसमें लूप्स का बहुत ज़्यादा फंक्शंस है, बहुत सारे फोर लूप्स होते हैं, इफ एंड एल्स कंडीशन होते हैं, जो कि हम आपको कल डिटेल में थोड़ा बहुत बताएंगे। और भी अगर बेसिक से भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप वर्कशॉप वगैरह अटेंड करो, उसमें बहुत डिटेल से हम आपको समझाते हैं, इलेक्ट्रॉन की फ्लो से लेकर हर चीज़ तक। बट ये चीज़ें आप थोड़ा देख लीजिए। R.output 3, 1, इसका मतलब क्या है? R लाइब्रेरी, उसमें से आउटपुट निकलेगा। 3 मतलब GPIO 3 पिन से, 1 मतलब हाई, यहाँ से हमने GPIO 3 से निकाला, कनेक्ट करा हमारी वापस LED को, यहाँ पे बोला मैंने लाइब्रेरी, मेरी बात सुनो, आप आउटपुट दो। क्या दोगे आउटपुट? तीसरे पिन, जो भी थर्ड पिन है, उसमें आपको हाई देना है। 1 मतलब हाई, यहाँ पे चाहो तो आप हाई भी लिख सकते हो कैपिटल लेटर में। ये बात याद रखना, रास्पबेरी पाई केस सेंसिटिव होता है, यहाँ पे जो चीज़ जैसे लिखी हुई है कैपिटल लेटर तो कैपिटल लेटर, नहीं तो इंडेड एरर आ जाएगी। आपको एरर से बचने के लिए आपको ये सब देखना पड़ेगा। और यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा सिलेबस का हिस्सा है। इवन ये तो तुम्हारा मैंने एक तरह से वही करवा दिया है, प्रैक्टिकली करा दिया जो तुमने बता दिया है। तो तुम ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि R.output 3, हाई है, तो एक तरह से यहाँ से हाई सिग्नल निकल रहा है। ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गई कि भाई हाई सिग्नल निकल रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई सिग्नल निकलने लगे, मतलब 5 वोल्ट का सिग्नल निकलने लग गया। अब ये बल्ब ऑन हो गया, अब बल्ब को मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऑफ करूँ, ये करूँ, कुछ भी चेंज करना चाहता हूँ, इसको कैसे पता चलेगा? ये तो सिर्फ एक सिग्नल दे दिया, मतलब यहाँ से एक पोर्टल चालू हो गया तीसरे पिन से, और उसने बोला भाई मैं तो लाइट को ऑन करूँगा, और बेसिकली ये तो लाइट ऑन हो गई। अब आप मुझे कोई बता सकता है कि इसको हम चाहते हैं कि इसको ब्लिंक करवाना है या फिर इसको कोई भी चीज़ को बंद कैसे करें या फिर कुछ समय, इसलिए मैंने बोला था मैं समय वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे। जैसे मैंने ये किया, यहाँ पर time.sleep के थ्रू लिखा जाता है इसे, time.sleep बोलेगा तो मतलब ये उस लाइब्रेरी में ऑटोमेटिकली टाइम के फंक्शंस को निकाल देगा। यहाँ पे 2 दिया मतलब 2 सेकंड के लिए, यहाँ 5 मिनट के लिए दोगे तो 5 मिनट का हो जाएगा, यहाँ 10 सेकंड के लिए दोगे 10 सेकंड के लिए हो जाएगा। वॉट एवर द डेटा यू हैव गिवन हियर, तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग एलईडी परफॉर्म करेगी। क्योंकि बेसिकली खेल ये नहीं कि ब्लिंक कर रही है एलईडी, जैसा आप चाहो आपका सिस्टम वैसा काम करे, वो जरूरी है। उसके लिए आपको टाइम को डिफाइन करना पड़ेगा कि सेंसर हर 2 सेकंड से डाटा ले। मैं बोल रहा हूँ भाई सुबह सुबह डाटा ले, रात को मत डाटा ले। भाई मैं ये चीज़ें मैं चाहता हूँ, टाइम डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई रात को मत लेना कोई भी डाटा, मुझे सुबह का डाटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वेदर एडजस्ट करना है। रात को काफ़ी कंफर्टेबल रहता हूँ। वैसे ही आउटपुट 3, अब यहाँ तक मेरे को एक बात समझ में आ गई कि ऊपर वाली 2 लाइन आपको ये समझ में आ गई, आउटपुट 3, 1, इसका मतलब इसको थर्ड पिन से सिग्नल निकलेगा और हाई परफॉर्म करेगा। दूसरा time.sleep 2 सेकंड का, इसका मतलब समय 2 सेकंड तक तो उसमें से सिग्नल निकले, उसके बाद में क्या हो। हमेशा पाइथन में टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट अप्रोच चलती है, तो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ पढ़ेगा तो वो बोलेगा R.output 3, 0। इसका मतलब होता है जो अपना ये आउटपुट है 3 थर्ड पिन से 0 हो जाए, 0 मतलब लो हो जाए, इसका मतलब उसमें से सिग्नल निकलना बंद हो जाए। तो वो पढ़ेगा कैसे, ऊपर से एक बार लाइब्रेरी से एक बार ही पढ़ता है, वाइल लूप को बार बार पढ़ता है। ठीक है, इसके अंदर इसने बोला कि पहले इसमें हाई हो जाए, फिर इसने बोला भाई 2 सेकंड का इसके अंदर डिले आ जाए। 2 सेकंड के डिले के बाद में क्या करेगा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही पाइथन अंदर जो माइक्रो कंट्रोल के अंदर होता है वो भी वैसे ही पढ़ता है। R.output 3, 0 मतलब 3 पर लो हो जाए, पूरी तरह से बंद हो जाए। एंड देन उसके बाद में वापस टाइम सेकंड का डिले हमने डिले time.sleep फॉर द 2 सेकंड, तो इसका मतलब बंद कितनी देर हो, 2 सेकंड के लिए। अब सोचो कि कैसे वो सब करेगी।
लाइट ब्लिंक करना कैसे करेगी। मेरे साथ एक साथ सब बोलेंगे। पहले लाइट बोलेगी हाय, बोलो हाय। फिर इसके बाद में टाइम डॉट स्लीप होगा 2 सेकंड का, 2 सेकंड के लिए रुक जाएगी। देन अगेन आउटपुट इज लो, से लो मतलब आपको लो बोलना है एक बार। हाँ, तो इसका मतलब हुआ पहले हाई हुई, 2 सेकंड रुकी, फिर लो हुई और फिर 2 सेकंड रुकी, और ऐसे आपकी लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट करती है। ये एक छोटा प्रोडक्ट है, एक छोटी चीज़ मैंने आपको बताई। इसके साथ सेंसर लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती है, इससे मल्टीपल चीज़ें बनती है। रोबोट का आर्म कैसे घूमेगा, रोबोट की स्टेपर मोटर्स को कितना कमांड देना। अभी यहाँ पर मैं बोलूँ मुझे तो ग्लास ही उठाना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे रोबोट ही उठाना है, तो रोबोट के लिए मेरा हाथ कितना घूमेगा, ये मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा सर्वो मोटर को 0 से 90 ही लेना है, ना कि 180 तक लेना है। तो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन उसको दिमाग दे रहे हैं कि बस तेरा हाथ 90 डिग्री तक ही जाना है। तो वो सब अपन को देना होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर वो परफॉर्म करते हैं। एक बेसिक था, इसको मैं रियल टाइम पे एग्जीक्यूट करता, बट राइट नाउ देयर इज अ टाइम टू व्हाट इज अगेन। तो इसका आउटपुट मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। देखो ब्लिंक एलईडी परफॉर्म हो रही है रास्पबेरी पाई से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं तुम्हें ये कहूँगा जरूर रास्पबेरी पाई जरूर पढ़ना, मतलब तुम्हें बहुत फ्यूचर में हेल्प करेगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अगर तुम प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वाली इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हो, और या फिर तुम उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हो, यहाँ पे तुम रिसर्च करके कुछ बड़ी बड़ी धांसू चीज़ें बनाना चाहते हो इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो उसके लिए आप जरूर रास्पबेरी पाई और ये कोर्सेज जरूर सीखें। ठीक है, ओके, दिस सेशन विल बी ओवर राइट नाउ।